Hello, students. Once again, you are most welcome here in this channel. This time, we are proceeding chapter first from the storybook Footprints Without Foot. Dear students, our chapter first is A Triumph of Surgery. Here, in the last video, I have explained you how much the mistress Mrs. Pumphrey takes care of her dog Tricky, and due to heavy meals, heavy diets, the dog is unable to move properly, and when the dog is not looking active, then Mrs. Pumphrey, who is the mistress, consulted the veterinary doctor, Mr. Harriet, who is also narrator here. Now, the doctor took away the dog Tricky with him, and now he kept him in his surgery, and he removed all the facilities, comfort, and luxuries for the dog Tricky, and he kept the dog just like that other dog at his surgery. He also reduced the diet of the dog, and now you can see here in this phase. When they had finished, Tricky took a walk around the shining balls, looking casually inside one or two of them. जब मिस्टर हैरियट ने, जो डॉक्टर थे, उसको 2-3 दिन तक खाना नहीं दिए तो काफ़ी भूखा महसूस किया, और जब उसके सामने बाकी डॉग को जब उनके बाउल में भोजन मिला, वो सब अपने भोजन को फिनिश कर लिए, तो ट्रिकी भी अब देखते देखते उनके पास गया। शाइनिंग बॉल जो बिल्कुल सब खा के डॉग्स उसको एकदम बिल्कुल चाट गए थे, उसके चारों तरफ चक्कर मारते हुए फिर गया, और 1-2 बार वो भी उस खाली बॉल्स को, एम्प्टी बॉल्स को चाटा। Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. And on the next day, the narrator, Mr. Harriet, who is the also doctor here, he also kept another bowl, another bowl for um, another bowl for the dog Tricky for his food. And this is the matter of joy for the doctor, as he also started to push one another to get his bowl, to get his food. फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड। और फिर इस न्यू एक्सपेरिमेंट के बाद से उसका प्रोग्रेस जो था वो काफ़ी तेज होता गया। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल हैड डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। और बिना किसी अब मेडिकल ट्रीटमेंट के ही वो पूरा दिन अब कुत्तों के साथ दौड़ना भागना वो शुरू कर दिया। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, स्क्रीमेजेस मीन्स फाइट, और अब उस ग्रुप को उस फ्रेंडली अब ज्वाइन कर लिया था। भले ही फाइटिंग मूड में ही ज्वाइन किया था, लेकिन एक फ्रेंडली फाइटिंग मूड में उस ग्रुप को वो ज्वाइन कर लिया था। He discovered the joys of being bowled over, trampled on, and squashed every few minutes. He discovered the joys. Discovered the joys of being bowled over. Tricky also started to get his food, get his ball, and he also trampled, crushed to the dogs. He also squashed, he also started to defeat them every few minutes to get the food of his part. He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the saggy crew. Saggy में होता है रफ, और धीरे धीरे जो है
उस गैंग को अभी एक्सेप्ट कर लिया था, उस गैंग का मेंबर बन गया था, जो कुत्तों का वो गैंग था। और ये भी, जबकि उनके बीच काफ़ी सिल्की छोटा था, लेकिन फिर भी अब उनके बीच ये भी रफली अब दौड़ना भागना, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम, भोजन के समय टाइगर की तरह लड़ना, फाइट करना, हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस, पुराने जो घर था जिसमें मुर्गियों वाला, उसमें जो रात को चूहों का शिकार करना दूसरे कुत्तों के साथ, ये सारी चीज़ भी अब वो सीख गया था। He had never had such a time in his life, and this time he was enjoying a very interesting life. And for Tricky, he had never enjoyed such type of life in his uh, life. All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin. पूरे समय जो था मिसेस पम्फ्री हावर्ड मिस स्टे क्लोज, बिल्कुल क्लोज रहता था, एंशियसली, काफ़ी वरीडली, इन द बैकग्राउंड में अपने आगे पीछे वो दौड़ती रहती थी, परेशान, काफ़ी चक्कर लगाती रहती थी। रिंगिंग अ डजन टाइम अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, और दिन भर में कम से कम दर्जनों बार लेटेस्ट खबर के लिए डॉक्टर को फ़ोन करती रहती थी। आई डज्ड मीन्स अवॉइड करना है, और सर्जरी पर से जो स्टाफ था, डॉक्टर जो थे, मिसेस पम्फ्री के फ़ोन को, उनकी बातों को अवॉइड करते थे। हिज क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चन वर बीइंग टर्न रेगुलरली, जो इस तरह से जो फालतू क्वेश्चन उनके द्वारा सिली क्वेश्चन पूछा जाता था कि क्या उसके ट्रिकी के क्वेश्चन को टर्न किया गया है, उल्टा किया गया, धुला गया, चेंज किया गया कि नहीं, हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर के अकॉर्डिंग उसको करेक्ट कोट उसको पहनाया गया है कि नहीं। तो आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वोलेसिंग रैपिडली। तो ये सारी बातें जो तो काफ़ी सिली लगता था डॉक्टर को, तो उस सारी बातों को वो आंसर करने में अवॉइड करता था, लेकिन डॉक्टर इतना ज़रूर बताता था कि जो लिटिल फेलो है अब आउट ऑफ डेंजर है एंड कन्वल्सिंग रैपिडली, और अपने हेल्थ को काफ़ी तेज़ी से वो इम्प्रूव कर रहा है। The word convulsing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. जो वर्ड कन्वल्सिंग था तो हेल्थ इम्प्रूवमेंट की बात था, हेल्थ गेन करने की बात था, लेकिन मिसेस पम्फ्री को बात कुछ डाइजेस्ट नहीं हुआ, उनको कुछ अजीब लगा, उनको लगा कि हेल्थ अपना डाउन तो उसका नहीं हो रहा है, कहीं वीकनेस तो उसको नहीं आ रहा है। सो स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग 2 dozen at a time to build up Tricky's strength. So the rich mistress, Mrs. Pumphrey, started to send 2 dozen eggs at each time to maintain the strength of Tricky. And for a happy period, my partner and I had 2 eggs each for breakfast. और ये काफ़ी एक अच्छी मोमेंट था डॉक्टर और डॉक्टर के पार्टनर्स के लिए कि उस अंडे का यूज ट्रिकी के लिए नहीं होता था, बल्कि उस अंडे का यूज ये लोग अपने ब्रेकफास्ट के टाइम यूज करते थे। ये काफ़ी उनके लिए एक इंटरेस्टिंग इंजॉयफुल मोमेंट था। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव, लेकिन अंडे के साथ साथ जब वाइन के बॉटल भी वहाँ पहुँचना शुरू हो गए, तो द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू dawn ऑन द हाउसहोल्ड। तो जो मिसेस पम्फ्री की जो रियल कंडीशन थी, उनके रिच होने का जो तर्क था, वो पॉसिबिलिटीज़ क्लियर हो गई कि वास्तव में काफ़ी वो एक रिच लेडी हैं, क्योंकि कॉस्टली काफ़ी प्रेशियस बॉटल्स अब वहाँ पे आने लगे थे वाइन के ट्रिकी को पिलाने के लिए। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, और ये सारे बॉटल किस लिए आ रहे थे? ट्रिकी के ब्लड को एनरिच करने के लिए और उसके ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए,
स्ट्रॉन्ग करने के लिए। Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. तो टर्की के ब्लड को एनरिच करने के लिए सारे वाइन्स के बॉटल आते थे, लेकिन डॉक्टर और डॉक्टर की टीम के लिए, स्टाफ के लिए एट दैट टाइम लंच वाज अ सेरेमनियल ओकेजन। वाई? क्योंकि बिफोर द लंच 2 ग्लासेस ऑफ वाइन का एन्जॉयमेंट जो उनको मिल रहा था, और ड्यूरिंग द मील उनको जो वाइन मिल रहा था, ये सारा एन्जॉयमेंट पूरी स्टाफ कर रही थी। ट्रिकी के बहाने इन लोगों का काफ़ी एन्जॉयफुल मोमेंट उस समय स्पेंड हो रहा था। तो therefore we can say here that the how much caring was for the dog Tricky, and these things were harmful for his health, but now the doctor understood everything, so he didn't feed the dog the egg, the wine. He had left them free like the other dogs, and it was beneficial for the dog's health.